इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मानसिक शांति के साथ साथ एनपीएस जीवन में संतुष्टि भी लाता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Good evening, listeners, and welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business or stock market matters. But do remember that as a policy, we don't address company or stock specific queries. You can call us on 2331 4444 and 23421050. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I am S. Rangabashyam and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताज़ा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेते हैं, साथ ही नजर डालते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और देश के शेयर बाजारों पर। सप्ताह का पहला दिन, लगभग 3 दिन की कारोबार सत्र बंदी के बाद मार्केट आज खुले। हम चर्चा करेंगे सेंसेक्स निफ्टी के बारे में, और दिन चूंकि सोमवार का है, आज भी श्रोता आप चाहें तो हमसे सवाल पूछ सकते हैं। 2 टेलीफोन लाइंस हमने आपके लिए खोले हुए हैं। नंबर्स हैं 23 31 44 44, 23 42 10 50। अपने सवालों को पूछें और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में फाइनेंशियल एक्सपर्ट यामिनी अग्रवाल मौजूद। यामिनी, आपका मार्केट मंत्रा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। And now let's begin today's edition with the headlines in English. The top stories. Key domestic indices surged nearly 2%. Sensex closes at 71,942, while Nifty settles at 21,738. And Brent crude is trading at $83.88 per barrel in the global crude market. भारतीय शेयर बाजारों में लगभग 2% की बढ़त रही आज। सेंसेक्स 71,942 पर, जबकि निफ्टी 21,738 पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें मजबूती पर। ब्रेंट क्रूड प्रति बैरल $83.88 पहुंचा। इस सप्ताह कारोबार का आज पहला सत्र। शेयर बाजारों में अच्छी रौनक बनी रही। लगभग 1.25 से 2% के बीच शेयर मार्केट उछले हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,241 अंक चढ़कर 71,942 पर रहा, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 385 अंक की बढ़त के साथ 21,738 पर रहा। विस्तारित बाजार की बात करेंगे। बीएसई मिड कैप 1.68%, जबकि स्मॉल कैप पूरे 1% मजबूत हुआ। सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, और इस 30 कंपनियों वाले सेंसेक्स में 25 कंपनियों के शेयर बढ़े हैं और 5 कंपनियों के शेयरों में कुछ गिरावट रही है। रिलायंस और टाटा मोटर्स के शेयरों में आज सबसे ज्यादा बढ़त रही है। And as Harsh just mentioned, key domestic indices surged nearly 2% amid mixed global cues. The BSE Sensex gained 1,241 points or 1.76% to close at 71,942. The NSE Nifty also rose 385 points or 1.8% to close at 21,738. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose 1.68% and the small-cap index gained 1.03%. In the Sensex pack, out of 30 companies, 25 companies appreciated while 5 declined. Reliance surged 6.86%, Tata Motors climbed 3.62%. Power Grid gained 3.4% and Larsen & Toubro rose 3.25%. On the other hand, ITC fell 1.2%, Infosys dipped 0.89% and JSW Steel slipped 0.59%. In sectoral indices at the BSE,
17 sectors appreciated while 3 declined. Energy sector surged 5.29% and oil and gas climbed 4.94%. Utilities gained 3.59% and power sector rose 3%. Let's start taking phone calls, and joining us first this evening is one of our regular callers, N.R. Prasad from Bangalore. Good evening, Mr. Prasad, and welcome to Market Mantra. Hi, good evening, Market Mantra. Good evening, Mr. Rangabhashyam. Good evening, Harsh Ranjan. Mrs. Agarwal, I just want to know, the budget is just 2 days away. Of course, this is an interim budget. What Finance Ministry is pushing is these two sectors, that is CapEx and the pharma. So I would like to know this manufacturing and construction sector and the pharma sectors, these two would rally most in the last 2 months of this financial year, 2023-24. This is my question. Thank you. Well, yes, this is an interim budget which the government would be presenting, and there would be a focus on the capex and the pharma, as has been suggested through different reports. It also indicates that the budget is likely to bring about a lot of fiscal prudence, simultaneously taking into consideration people-friendly welfare schemes. So when we talk about them, I think both the sectors should do well. For the manufacturing and the construction sectors, we have seen government schemes in the form of PIL, which have been trying to bring about or place India as a manufacturing hub. For the construction sector, well, the inflation has been high, which has affected the real estate markets in the positive direction, as the prices have gone higher than what they were, and that does give an impetus to many of the real estate builders to complete the inventories and sell their real estate inventories to the market, which does employ more people in the sector. और यामिनी, अगर हम पिछले 2-3 साल में देखें तो पहले फार्मा सेक्टर की बात जो मिस्टर प्रसाद ने पूछी, पोस्ट कोविड आप देखें तो लगातार फार्मा सेक्टर जो है उसका प्रदर्शन अच्छा ही रहा है, क्योंकि भारत एक तरीके से अब दवाइयों का निर्यात भी काफ़ी कर रहा है और लोगों में एक फार्मा सेक्टर को लेके मार्केट में एक उत्साह है। और इस साल के बजट को देखें, जो साल 2023-24 का बजट था, उसमें सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए जो दिए गए थे, तो जाहिर सी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग और जो कैपेक्स जिसकी बात कर रहे थे उसमें काफ़ी बढ़त होगी। और मुझे लग रहा है कि इस साल भी ये जो परंपरा स्थापित हुई है इंफ्रा सेक्टर के बारे में, वो कायम रहनी चाहिए। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जहाँ तक फार्मा सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर माना जाता है जो किसी भी इकोनॉमिक कंडीशन से इतना इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये हेल्थ रिलेटेड सेक्टर माना जाता है। और ओवरऑल इस सेक्टर में जो है चीज़ें चलती रहती हैं। को कभी कभार जहाँ पे इफ़ेक्ट होता है, वो जैसे पेंडेमिक की कंडीशंस हैं, वहाँ पे फार्मा सेक्टर में एक उछाल नज़र आता है। जहाँ तक बजट्स देखा जाए सरकार के, उसके अंदर 137% इंक्रीज़ किया गया था और 2% से ऊपर जो जीडीपी के एक्सपेंडिचर्स हैं उनको लाने की कोशिश की गई थी 2.5% तक, ताकि जो है भारत वर्ष की जो हेल्थ रिक्वायरमेंट्स हैं डिफरेंट सेटअप्स में वो पूरी की जा सके। और ये खास तौर पे तब आया था जब कोविड का समय चल रहा था। आमतौर पे देखें तो जो विकसित राष्ट्र भी हैं, वहाँ की जीडीपी का लगभग 3% या 3% से थोड़ा ज़्यादा ही बहुत मामूली ज़्यादा हेल्थ सेक्टर के लिए रहता है, जो इंडिया बहुत तेज़ी से अचीव कर रहा है। इससे ये भी साबित होता है कि सरकार, केंद्र सरकार कितनी गंभीर है स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं विकास कोलकाता से, लेकिन विकास आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हम चलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए फिलहाल। अपने सुरक्षित भविष्य के साथ साथ वित्तीय स्थिरता के लिए भी एनपीएस पर भरोसा करें। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक
और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome back, listeners. You're tuned in to the phone-in edition of Market Mantra on Akashvani, and let's continue taking phone calls. We have Vikas joining us from Kolkata. Good evening, Vikas, and welcome to Market Mantra. जी नमस्ते मार्केट मंत्रा। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। ईवी, टायर, रेल, जी। डिफेंस, इस सेक्टर में अभी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए? 1 साल का ऊपर हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट, क्या 10 साल का नजरिया है मेरा लॉन्ग टर्म का? यस यामिनी जी देखिए, जहाँ तक रेल हैं और डिफेंस हैं, ये लंबे सेक्टर्स हैं माने जाते हैं। टायर भी एक कन्वेंशनल सेक्टर माना जाता है, मीडियम टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा सेक्टर है। पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हैं उनमें 5 से 10 साल एक अच्छा निवेश या लॉन्ग टर्म निवेश जिसे हम कहें वो अच्छे रहते हैं, क्योंकि उनमें रिटर्न्स उसी हिसाब से आते हैं। Yeah, and Yamini, let's also very quickly, discuss the stock market action today. Close to 2% jump in the Sensex and Nifty, and also in the broader markets. It seems as if the markets have come back with a vengeance. Well, the volatility in the markets usually remains at historic highs. So it's the turbulences that have been there in terms of the corrections that took place come back with a force when people believe that the overall growth will maintain its momentum. So profit booking, yes, does take place when there are historic highs, which is a very common correction in most markets. So I believe there was nothing much to worry on, because the growth momentum is more structured on the structural reforms and the long-paced sentiments in terms of how India has been performing domestically and has been placing itself internationally in terms of its growth and in terms of its development. That resilience seems to be intact. That resilience seems to be intact, both in terms of the particular reforms that we are looking at, the kind of capital expenditure which is estimated by the government in the infrastructure or the various segments, also in terms of the social developments that have been taking place in bringing women workforce or the other groups into the labor participation. What does remain the key is ensuring that every person and every sector or every individual is a part and parcel of the economic development and growth. Yeah, and Yogesh joins us next from Delhi. Good evening, Yogesh, and what's it that you want to talk about? शुक्रिया आपका। जी। नमस्कार सभी को। नमस्कार। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि सवाल पूछने में और ज्यादा आनंद तब आता है जब पोर्टफोलियो हमारा प्लस में आता है, और आज मार्केट ने अच्छा गेन किया है। जी। कांग्रेचुलेशन सभी को। और मेरा सवाल मैम ये है कि एक नाइट रैंक की एक सर्वे के हिसाब से एक डेटा आया था सामने, जिसके हिसाब से अगर आपकी नेटवर्थ जो है 1.45 करोड़ है तो आप टॉप 1% लोगों में आते हैं। तो कितना इस डेटा पे विश्वास किया जाए, और अगर हमारा पोर्टफोलियो जो है नेटवर्थ जो है 1 करोड़ पार कर जाती है तो क्या हम टॉप 1, 2 या 3% के आसपास आएंगे? ये सच है? जी देखिए, हर एक सर्वे के अंदर एक थ्रेशोल्ड रखा जाता है। उस थ्रेशोल्ड के बेसिस पे वो बताते हैं कि कितने लोग जो है वो 1%, 2% या एक पर्टिकुलर लेवल पे होते हैं। तो जहाँ तक इस पर्टिकुलर सर्वे की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने ये थ्रेशोल्ड 1.5 करोड़ का रखा है, और उसके हिसाब से आप अगर आपकी नेटवर्थ 1.5 करोड़ से ऊपर है तो आप उस 1% लोगों में आते हैं जिनकी नेटवर्थ अच्छी है और बेहतर ज़िंदगी बिता रहे हैं। Right, let's move on and take our next caller. We have Diptesh Patel joining us from Mumbai. Mr. Patel, a warm welcome to the program. Thank you. Yeah, go ahead, put your question. Yeah, this is regarding Japan, and we have loan from them and bullet train. Could you please repeat your question? This is regarding Japan,
loan and the bullet train. Japan loan. हाँ, बुलेट ट्रेन के लिए जापान ने जो लोन दिया है हमें, या And the bullet train. The loan, I suppose, we have taken for zero interest, right? Mm-hmm. So, how India is going to spend that money and how we are going to repay is my question. Thank you. ये कुल मिला के जापान के संदर्भ में इसे न देखें, यामिनी, इनको मैं थोड़ा सा ट्वीक करता हूं इनके क्वेश्चन को। ये क्या है कि जो हम दूसरे देशों से कुछ लोन लेते हैं, जो हमारे आपसी बायलैटरल रिलेशनशिप होते हैं, भारत दूसरे देशों की मदद करता है पैसों से या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। जापान के साथ हमारे बड़े पुराने रिश्ते रहे हैं और जापान ने इंडिया में कई सारे प्रोजेक्ट लिए हैं, बीइंग बुलेट ट्रेन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स। तो किसी भी देश में या आईएमएफ से जो हम लोन लेते हैं उसको किस तरीके से हम रीपे करते हैं, और किसी भी देश पे लोन का रहना कितना ज़रूरी है इकोनॉमी के विकास के लिए। जी देखिए, पहली बात तो लोन इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर्स होते हैं और पब्लिक एक्सपेंडिचर्स में बहुत सारे क्षेत्रों पे खर्चे होते हैं। जिन क्षेत्रों में प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या आपके कैपिटल एसेट्स बनाने हो, वो आगे चल कर के आपको फ़ायदा देते हैं क्योंकि वो अर्निंग का सोर्स होते हैं और लोगों को सहूलियतें देते हैं। कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स के माध्यम से होते हैं, जिसमें पैसा लोगों तक दिया जाता है, जैसे पेंडेमिक के दौरान या किसी और स्थिति के दौरान जिसमें वेलफेयर स्कीम्स ली जाए और लोगों तक पैसा पहुंचाया जाए। जो भी लोन आप लेते हैं किसी भी पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए, उसके लिए ऊपर कुछ इंटरेस्ट होता है। जहाँ पे आपने कहा जापान में 0% है, वो काफ़ी कम परसेंटेज पे है, 0% पे तो नहीं है, पर जो भी लोन होता है वो एक परसेंटेज पे लिया जाता है, जिसकी इंटरेस्ट जो होता है, ब्याज जिसे हम कहते हैं, उसकी पेमेंट्स होती है और जिस पीरियड के लिए लिया जाता है उस पीरियड के बाद जिस करेंसी में लोन लिया जाता है उस करेंसी में उसको वापस किया जाता है। अगर आपने डॉलर में लिया है तो डॉलर में, अगर येन में लिया है तो येन में। और ज़्यादातर समझौते आपसी देशों में भी होते हैं, और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जैसे आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक है या कोई और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है उनसे लेते हैं तो उनके कुछ नियम होते हैं जिनको आपको पूरा करना होता है और उनको साथ ही साथ बताना होता है कि आपने उस लोन को कैसे खर्च किया और आप उसकी सर्विसिंग कैसे करेंगे। और चूंकि लोन और पैसे की बात हो रही है, डॉलर की बात हो रही है, येन की बाबात हो रही है, तो बताना पड़ेगा यहाँ हमें कि विदेशी मुद्रा बाजार में आज 1 रुपये की कीमत 83 रुपये 14 पैसे रही और डॉलर इंडेक्स 103.62 पर अंतर्दिवसीय कारोबारी सत्र के दौरान चल रहा है। And let's continue taking more phone calls. We have Ravi Narayan joining us from Bhilai. Good evening, Ravi, and welcome to Market Mantra. Thank you. Good evening, Market Mantra. Yeah. मेरा क्वेश्चन जो है यामिनी जी से ये है कि ये साल भी जो है आगे इलेक्शन है, तो बजट पॉपुलिस्ट होगा इस उम्मीद के साथ मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सीनियर सिटीजन के लिए और कुछ रिलैक्सेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? और दूसरा, ये जो टैक्स रेजिम है पुराना और नया, उसको कंटिन्यू करेंगे या फिर इसमें कोई और प्लान है इनका? Yeah. But Yamini, what would you say? Does a vote on account have much of a scope? Vote of account does have scope in offering some schemes which usually do come through when there are election periods, and most governments take them as election budgets, as we may say. Whether this would be or would not would be known on the budget day, but mostly many of the welfare schemes do come through during this period, and a lot of people friendly, I would use the word, expenditures or welfare schemes or announcements are announced to woo the voters. As for the senior citizens, we can expect some amount of an increase in the interest rates, but I don't see much change in the tax regime, which probably can come through from the central bank or the others. Last year itself, they had increased the exemptions. I don't think they would prefer to choose or bring about any change in the tax regime, as they have been shifting to the new scheme that is there. ओके, हमारे साथ जितेंद्र हैं जयपुर से। जितेंद्र, जल्दी से अपना सवाल पूछ लें।
Hello, Jitendra. Do we have you online? Market Mantra and Yamini ma'am. Yeah. My question is that what is your view on the chemical sector? Because even the best of the companies for the past three years or so has not performed at all. So should we hold it or should we think in terms of selling? Thank you. यामिनी, इस मंच से तो हम हमेशा जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं या जो हमारे ट्रेड करने वालों को तो हम ज़्यादा एड्रेस नहीं करते, लेकिन जो कॉमन इन्वेस्टर्स हैं उनको यही कहते हैं कि आप किसी भी सेक्टर में अगर आपको लगता है कि आपका फ़ायदा हो रहा है और आपको पैसों की ज़रूरत है तो उसको निकाल लेना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और अगर नहीं तो आपको उसमें बने रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में डेली में क्या निकालना है क्या करना है इस पे मार्केट मंत्रा ज़्यादा सलाह नहीं देता है। लेकिन हाँ, केमिकल सेक्टर कैसा कर रहा है इसके बारे में आप बता दें। जी देखिए, केमिकल सेक्टर ओवरऑल अच्छा कर रहा है। इसमें काफ़ी हद तक ग्रोथ रही है। काफ़ी हद तक जो इसके फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं और जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं दोनों ही इसको सपोर्ट करते हैं, पर इसमें ख़ास तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन सी स्पेसिफिक कंपनीज़ हैं और वो क्या प्रोड्यूस कर रही हैं और उनका ग्रोथ कितना है। जहाँ तक बने रहने या निकलने का सवाल है उसके लिए ये निर्भर करेगा कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप कितने समय से किस चीज़ को होल्ड करना चाहते हैं और आप कितने संतुष्ट हैं अपने लाभ से, या अगर आपको लगता है कि उसमें नुकसान होने वाला है तो आप कितनी जल्दी उसमें से निकलना चाहते हैं। Well, listeners, you're tuned in to our business program Market Mantra on Akashvani. जीवन में स्थिरता के साथ साथ एनपीएस आपको आर्थिक आजादी भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। मार्केट मंत्रा में एक बार फिर आपका स्वागत। एशियाई बाजारों की बात करेंगे, जहां आज मिला जुला रुख रहा है। दक्षिण कोरियाई बाजार का कॉस्पी 0.9% बढ़ा है। हांगकांग के हैंगसेंग में और जापान के निकेई में 0.8% की मजबूती रही है, लेकिन चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.9% और सिंगापुर का स्ट्रेस टाइम्स इंडेक्स 0.6% गिरा है। यूरोपीय बाजारों में कारोबार चल रहा है। लंदन का फुटसी 100.2% मजबूत हुआ है, जबकि फ्रांस के कैक 40 में भी 0.1% की तेजी रही है। जर्मनी का डैक्स 0.4% कमजोर हुआ है। And let's take more phone calls. Joining us next is one of our regular callers from Kolkata, Atanu Saha. Good evening and welcome to the program. Yes, good evening, sir. I Atanu from Kolkata. My question is how we recognize alternative. How do we recognize alternative investment and future of dollar? Thank you. Okay. So I believe you're referring to the alternative investments in the stock markets, also through the pension schemes that you're referring to. Again, in investments in assets which are other than the financial assets or are not the common use assets would be a part of the alternative investment. As far as US dollar is concerned, there has been a rise in the dollar index today, and the Federal Reserve Bank's meeting is to take place in this week itself, which is one of the important events to watch for. Also, they have indicated that they would be taking a softer stand towards the monetary policy and likely to bring about 2 to 3 cuts in the coming future. So dollar presently has a good strength, but the geopolitical risks continue to loom in the overall markets, as we can see through the Red Sea crisis or the others that have been there. Yeah, and Yamini, you spoke about the Federal Reserve. Let's also talk about our own central bank, the RBI. In the first week of February, we'll be having the bi-monthly monetary policy review. For the past couple of reviews, it was a status quo. What can we expect this time around? Could there be some tinkering in the repo rate or the reverse repo rate, and there's been a availability of cash problem as well. So could the CRR be also tinkered?
there has been an issue of liquidity in the market, for which there can be a possible change in the CRR and the SLR. It is primarily to accommodate again about 3 lakh crores capital expenditure which the government intends to do. Again, when we talk about overall changes in the repo structure or the interest rates, the RBI would keep a close watch on the other central banks, and which have been indicating that there would be a cut and they would have a more accommodative stance to ensure economic growth and investment in their economies. So I do feel that the RBI would follow the suit and would like to ensure that there is growth, but one needs to keep into account that there are global supply chain pressures which would keep inflation at a very challenging position for the RBI to keep a very strict balance in terms of both liquidity, which is going to be infused through the CRR or the SLR, and also at the same time managing the interest rates. अभिषेक दिल्ली से जुड़े हुए। अभिषेक जी, क्या सवाल है आपका? अभिषेक, सवाल पूछ लें अभिषेक। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है अभिषेक, शायद आप ऐसी जगह। हेलो जी, अब आ रही है, आप पूछ लें सवाल प्लीज। हाँ, मैं ये कह रहा था, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम। मेरा ये सवाल था कि मैंने एक फिक्स एसेट पे अपनी सेल करी है और उसका जो पैसा मिला है वो मैं अपना मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं ये समझना चाह रहा था कि किस प्रपोर्शन में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में, या गोल्ड वगैरह में, और उसके बारे में थोड़ा मुझे गाइड करें। जी देखिए, आप कभी भी निवेश करें तो सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करें कि आपको क्या ऑब्जेक्टिव से इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म करना है, लॉन्ग टर्म करना है, सेफर इन्वेस्टमेंट में करना है या रिस्क लेना है। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट्स में जाएं तो फिक्स डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस एंड आपके जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं पोस्ट ऑफिस के, वो भी आते हैं, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या आरबीआई बॉन्ड्स भी आते हैं। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इक्विटी मार्केट में डायरेक्टली कर सकते हैं अगर आपको आइडिया है मार्केट्स का, वरना म्यूचुअल फंड्स के द्वारा जाएं। Right, let's take a look at the oil scenario. Oil prices today rose after a drone attack on US forces in Jordan added to supply disruption concerns in West Asia, and Houthi militants stepped up attacks in the Red Sea. In intraday trade, Brent crude was trading at $83.57 per barrel, while US WTI crude was trading at $78.03 per barrel when reports last came in. आज के लिए इतना ही। अनिल वैसे जुड़े हुए थे, लेकिन अफसोस टाइम खत्म हो रहा है। आपको आज नहीं, अगली बार आप कॉल कर लीजिएगा। सारे दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, श्रोताओं आपका, और यामिनी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। And before we close, a quick look at the top stories. Key domestic indices surged nearly 2%. Sensex closes at 71,942. Nifty settles at 21,738. And Brent crude is trading at $83.88 per barrel when reports last came in. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye. नमस्कार। एक आकर्षक निवेश के साथ साथ एनपीएस समानता का भी साधन है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। Market Mantra.